A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics. So in the economics we have studied two parts, that is microeconomics as well as statistics for economics. Okay. So from the previous few classes we were continuously revised the chapters. We have done number of the numerical questions of the statistics for economics, like measures of the central tendency, that mean, median and mode, measures of the dispersion. So you know very well that due to COVID your syllabus has been reduced up to the 30%, so you no need to study the measures of the distribution like mean deviation, quartile deviation, range, etc. Okay, so in this chapter we have discussed about the standard deviation and the variation and the coefficient of variation and the Lorentz curve. Okay, as well as we have discussed the and done the very different numerical questions of the chapter correlation, as well as we have started the chapter of the statistics for economics, that is index number. Okay, so in this chapter we have already, in the chapter index number, we have already discussed the what is the meaning of the index number. So next one that we have discussed the what are the different advantages of the index number, as well as the what are the different problems or the difficulties while construction of the index number, and the features and the characteristics of the index number. So we have already discussed all these things in this chapter, as well as we have discussed the limitation of the index number. So what are the different limitation of the index number and the methods of the construction of the index number. So we have already discussed. So in this, the methods of the construction the index number, so it is divided into two, that is unweighted, or unweighted is also called the simple index number or the weighted index number. So unweighted or the simple index number is further divided into two, that is simple aggregative method and the simple average of the price relative method, and the weighted index number is divided into two, that is unweighted average of the price relative method and the weighted aggregative method. Okay, so in the last class we have started with the unweighted index number. So we have discussed in the unweighted index number. So in this, all the items of the series have the given the equal importance. Okay, so no specific weightage is provided to any item of the series because all items assumed to be equally important. ठीक है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जितने भी आइटम्स है, नंबर ऑफ ऑल द आइटम्स है, उनके क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं किसी एक आइटम को हम क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और किसी एक आइटम को हम क्या कर रहे हैं लेस इंपॉर्टेंट दे रहे हैं. ठीक है, लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, अनवेटेड में दो मेथड पढ़ना है जिससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे. तो पहला इसका मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और द सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड. ओके, सो इन दिस सिंपल एग्रीगेटिव मेथड वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक इन द लास्ट क्लास. सो इन दिस मेथड एग्रीगेट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ द करेंट ईयर. ओके, हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट किसका लेते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ द करेंट ईयर विच इज डिवाइडेड बाय द aggregate price of the commodities of the base year, that is P0. और इसको किस में परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं ये मैंने बताया था, तो इंटू 100. ओके, सो P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100. यहाँ तक कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है. आज हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखना है, जो आज हम लोग वन बाय वन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके आगे मूव ऑन करते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन देखते हैं. वन, it is given here, construct index number for 1999 taking 1985 as the base year from the following data using simple aggregative method. ठीक है, इसमें क्या करना है, इंडेक्स नंबर हमको किस ईयर का बनाना है, 1999 का बनाना है, जिसमें हमको क्या अज्यूम करना है, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं कि बेस ईयर किसको ले रहे हैं, 1985 को ले रहे हैं. और बेस ईयर मैंने बताया है, अगर वाइल
वी आर गोइंग थ्रू दी कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर, तो बेस ईयर को हमेशा हम लोग 100 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इंडेक्स नंबर फ्रॉम द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पे कमोडिटीज, नेक्स्ट वन इज प्राइस इन 1985 in rupees and price in 1999, prices in 1999 रुपीज में। नेक्स्ट क्या दे रहा है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन। आपको फॉर्मूला पता है, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। तो प्राइस अगर 1985 है, दैट मीन्स ये बेस ईयर है। बेस ईयर तो प्राइस हम लोग क्या लेते हैं, P0 लेते हैं, और प्राइस इन 1999, दैट मीन्स इट इज करेंट ईयर, तो इसको क्या लेंगे, P1 लेंगे। सो A, B, C, D, E, F. So these all are the commodities। ये आपकी commodities हैं जिसमें जिसकी प्राइस 1985 में 8 थी, then 15, 12, 10, last one is 12.5। प्राइस इन 1999 क्या है, 10, 21, 36, 14, 12, 70, राइट। अब हमें क्या करना है, समेशन P0 करना है, समेशन P1 करना है। समेशन P0, समेशन P1, इसको सम करिए। इसको सम करते हैं, कितना हो गया, 20, 32, 15, 8, 55, then 12.5 is 5, 67.5। So rupees 67.5। नेक्स्ट आपका क्या है, प्राइसेस इन 1999, इसको सम करते हैं तो कितना होता है, 31, 36, 26 और 17, then 7, 7, 14, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 110 रुपीज 110 हो गया। इतनी वैल्यू हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसको जो इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से कर रहे हैं। तो P01 इक्वल टू समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, राइट। P01 समेशन P1 कितना दिया है, 110 डिवाइडेड बाई 67.5 इंटू 100, राइट। अब यहाँ पे हम लोग P01 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, तो P01 की वैल्यू आएगी 162.96। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे, प्राइस जो दे रखी है उसका कंपैरिजन हमको किसके साथ करना है, हमें करना है बेस ईयर के साथ। तो बेस ईयर हमें पता है, हम बेस ईयर कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, और प्राइस में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 162.96 हो रहा है। दैट मीन्स प्राइस अगर हम बात करते हैं तो प्राइस कितना परसेंट इंक्रीज कर रही है, 62.96। प्राइस इंक्रीजेस, क्योंकि हमने बेस ईयर कितना, हमेशा बेस ईयर हम 100 ही लेंगे, तो प्राइस कितना इंक्रीज कर रही है, 62.96%। ठीक है, हमने बताया कि इंडेक्स नंबर को हम लोग हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं, तो प्राइस कितनी इंक्रीज हुई, 62.96।
6। यही होता है आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसमें बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है। आपके पास सारी वैल्यूज दी होगी, बस मेन जो है यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बेस ईयर हमेशा हम लोग क्या लेंगे, 100 लेंगे। तो जितना भी इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हो रहा है आपका 182.86, तो प्राइस कितना इंक्रीज होगी, 82.86%। बस यही डिफरेंस है। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला है P01 इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। P1 आपके पास दिया है 1999 और P0 भी 1985 का दिया है, उसको सम करेंगे, फॉर्मूला पे प्लॉट करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू, और देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द simple aggregative method. By the simple aggregative method we can calculate the value of the index number, right? Okay, so again we can do one more question related to this topic, that is commodities is given here. Calculate the index number by the simple aggregative method from the following data. जब आपके पास ये डेटा है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के थ्रू हमें इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कमोडिटीज को चेंज कर लेते हैं। प्राइसेस का की है 1998 की और 2004 की, 1998 एंड 2004 सेम प्रोसेस है, नथिंग इज डिफरेंट। सो प्राइसेस इन 1998 एंड प्राइसेस इन 2004. Commodities is PQRST. PQRST. So prices in 1998 और 2004 रुपीज में दिया है। 1998 हमारा क्या हो जाएगा, बेस ईयर की प्राइस हो जाएगी, तो इसको P0 ले लेते हैं, और प्राइस इन 2004 ये क्या है, करेंट ईयर की प्राइस है, so it is denoted as P1. Okay, so values क्या क्या है, 40, 28, 12.5, 10 and 30. Prices in 2004 50, 50, 35, 15, 20 and 90. सेम प्रोसेस। फिर आपको क्या करना है, P0 और P1 को सम करके फॉर्मूला पे पुट करना है। ठीक है, इसको सम करिए। समेशन P0 इक्वल टू रुपीज समेशन P1 इक्वल टू रुपीज। ओके, इसको सम करते हैं। 50 प्लस 70, 50 एंड 90, 110, sorry 210. Next one is this 40, 50, 80, 80 हो गया, 28, then 12.5, 120.5, 120.5। बस आ गया वैल्यू। आपको क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट करके कैलकुलेट कर देना। सो P01 इक्वल टू समीशन P1 इज 210, समीशन P0 इज 120.5 इंटू 100। सो P01 की वैल्यू कितनी आ रही है, 174.27। ओके, अब आपको सेम वही चीज की प्राइस क्या हो रही है, प्राइस ऑफ द जब हम लोग ले रहे हैं P01 कितना आ रहा है, 174.27। ठीक है, 174.27 का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो प्राइस है, अगर हम लोग बेस ईयर कितना ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, तो प्राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीजेस बाई 74.27%। ठीक है, प्राइस कितने से इंक्रीज हो रही है, 74.27% से प्राइस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। ये भी क्या है, अनवेटेड
इंडेक्स नंबर का ही पार्ट है, सेकेंड है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करना है। अनवेटेड का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर ऑफ आइटम जो भी दिए हुए हैं सीरीज में, उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। हर एक नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उसका हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ कर लिया। इसमें फॉर्मूला क्या था सिंपल एग्रीगेटर मेथड का, P01 इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। इसका 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं, दैट इज सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। So simple average of price relative method. So it is another method to calculate the unweighted index number. ठीक है, ये another method है कि जब unweighted index number हमें calculate करना है। So we first calculate the price relative of the current year. सबसे पहले हम क्या find out करेंगे, प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे करंट ईयर का। उसको फाइंड आउट करने के लिए वही सेम है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 की P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके हम लोग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। एंड देन प्राइस रिलेटिव इज द प्राइस फॉर द करंट ईयर। प्राइस रिलेटिव क्या होता है, प्राइस होता है करंट ईयर का, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द पीरियड ऑफ द बेस ईयर। किसमें एक्सप्रेस होता है कि प्राइस ऑफ द करंट ईयर दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100 प्राइस रिलेटिव। इक्वल टू क्या हो गया आपका, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, सो प्राइस रिलेटिव फॉर द ईच कमोडिटी आर कैलकुलेटेड। अब हमें हर एक कमोडिटी का क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे आपका 2 दे दिया है, बेस ईयर का और करंट ईयर का, तो हर एक इंडिविजुअल, हर कमोडिटी का हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वन इज वी फाइंड सम टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव दैट इज, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम टोटल फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये कैलकुलेट करने के बाद जो नीचे वैल्यू आएगी उसको सम करेंगे, मतलब समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, समेशन PR प्राइस रिलेटिव और समेशन R समेशन ऑफ रिलेटिव। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि पहले समेशन प्राइस रिलेटिव निकालना है, जिसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर नेक्स्ट क्या करना है, इसका जैसे ही हर एक कमोडिटी का निकालने के बाद इसका समेशन करना है, समेशन P1 अपॉन P0 जो आया लास्ट में वैल्यू आएगी सारे का सम करेंगे, जिसको और क्या बोलते हैं, समेशन PR मीन्स प्राइस रिलेटिव और दी R। ठीक है, ये बोलते हैं। फिर करना क्या है हमें, नेक्स्ट स्टेप, so this total summation PR is divided by the number of commodities as we have to find the average of the price relative। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमें ये जो है समेशन PR उसको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी सारी कमोडिटीज दी हुई हैं। अगर वो 5 हैं तो डिवाइडेड बाय 5, अगर कमोडिटीज ABCD 4 भी हैं तो जो भी समेशन PR आएगा डिवाइडेड बाय 4। उसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिंपल एवरेज। देखिए यहाँ पे टर्म ही आ रहा है एवरेज। एवरेज होने का मतलब क्या है कि जो भी प्राइस रिलेटिव निकालेंगे उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हम उससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका सिम्बॉलिकली अगर हम लोग इसको यूज शो करते हैं इस फॉर्मूला को, तो लिखते हैं हम लोग P01 इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन N। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला को डिवाइडेड बाय N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन PR अपॉन N।
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सबसे पहले सिंपल सा समझिए, प्राइस रिलेटिव निकालना है तो P1/P0 इंटू 100 हर कमोडिटी का निकालेंगे। फिर इसके बाद ये जितना भी सबका निकालेंगे उसको सम कर देंगे और इसको क्या बोलते हैं, समेशन PR और समेशन R भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिकली अगर हम लोग जो फॉर्मूला बना रहे हैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो हम लोग लिखेंगे P01 इक्वल टू यही समेशन P1/P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई n, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन PR/n। अब हम लोग को क्या करना है, इस पे डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं, इसके थ्रू आपको ये क्वेश्चंस क्या है और इजीली समझ में आएगा। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। सो जो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया था ना उसी पे ही करेंगे, बट डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो फॉर्मूला हम लोग वहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर 1999 टेकन 1985 एज द बेस। यहाँ पे 1990 क्या है कि प्राइस किसका दे रहा है, करंट ईयर का दे रहा है, और 1985 क्या है, बेस ईयर है, ठीक है। तो कमोडिटीज लिखते हैं यहाँ पे, कमोडिटीज and here prices in 1985 रुपीस में है, and prices in 1999 रुपीस में। So 1985 is taken as P0 and prices in 1999 is taken as P1, क्योंकि P0 क्या है, प्राइस ऑफ द बेस ईयर, एंड P1 इज प्राइस ऑफ द करंट ईयर। सो कमोडिटीज इज A, B, C, D, E, F and okay only F. So A, B, C, D, E, F. So 8, 15, 12, 10, 10 and 12.5। okay, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस में दिए होंगे, तो इसमें कोई इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देन 10, 21, 36, 14, 12 and 17, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना है, यहाँ पे PR निकालना है। PR मीन्स प्राइस रिलेटिव। अब PR यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम PR कैसे निकालेंगे, समेशन PR यहाँ पे निकालना है आपको, समेशन PR। तो यहाँ पे PR निकालने का क्या है फॉर्मूला, P1/P0 इंटू 100, ठीक। फिर समेशन मतलब इसको हमको क्या कर देना है, सम कर देना है, समेशन। देन फर्स्ट का है P1/0, दैट मीन 10/8 इंटू 100, 21/15 इंटू 100, 36/12 इंटू 100, 14/10 इंटू 100, 12/10 into 100 and the 17/12.5 into 100, right? ये हमको करना है, ठीक। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 125, राइट। ओके, सो ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 2 जा 10, 140। ओके, नेक्स्ट वन इज 12 3 जा 36, 300, 140, 120, right? 140, 120 and the last one is
136। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट नीचे क्या करना है, समेशन पी आर निकालना है। समेशन पी आर कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया आपका 125, 280, 300 और 120। 825, sorry 961. So thus something is 125, yes, 140, 300, 140, 120. Oh, I missed 161. तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया आपका 961। 961। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम लोग P01 यहाँ पे निकालते हैं, P01 इक्वल टू समेशन PR अपॉन n। देन P01 इक्वल टू समेशन PR कितना है, 961 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 2 3 4 5 6। ओके, सो P01 आ जाएगा आपका 6। ओके, सो 6 961 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 1 जा 6। सो 160.17। अब हम लोग अगर बोलेंगे कि बेस ईयर को हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, तो अब बोलेंगे सो द प्राइस इंडेक्स हियर द 160.7 shows that there is net increase of 60.17% in price in 1999 as compared to the price 1985। कि कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। देयर इज हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइस इंडेक्स कितना आया है, प्राइस इंडेक्स इज 160.7। दैट मीन्स देयर इज नेट इंक्रीज इन 60.17 price in current year। Current year, that means in 99 as compared to price of base year, that is in 1985। ठीक है, तो नेट इंक्रीज कितना हो रहा है, हम लोग, मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम लोग बेस ईयर को हमेशा ही 100 लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, बेस ईयर अगर 100 है तो अभी 160.17, दैट मीन्स 60.17 प्राइस करेंट ईयर में इंक्रीज हो रही है और बेस ईयर के कंपैरेटिवली ये 60.7 प्राइस इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स अभी हम लोग ने क्या क्या मेथड पढ़ा, सिंपल एग्रीगेटिव पढ़ा और सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव मेथड, दो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ है, क्वेश्चन इज यूजिंग द क्वेश्चन इज commodities A B C D E। okay, we will change all these value। this is 2000 and current year is 2008। and 2008। Okay, so the values is 16, 40, 35, 9, 2, 20, 60, 70, 18, 1.5। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। So 20 upon 16 into 100. Next one is 60 upon 40 into 100. 70 upon 35 into 100. 18 upon 9 into 100 and 1.5 upon 2 into 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। क्या क्या वैल्यू आएगी इसकी, 125, 150,
200, 9 2 18, तो ये भी आपका हो गया 200। फिर सेम इसको भी करेंगे, देन 75, इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, समीशन पी आर करेंगे, पी आर इसको सम करेंगे तो ये 400, 150, 125 और 75, 7 8 9 10 15 1 4 5 6 7, ये हो गया आपका 750 रुपीज में, रुपीज 750, राइट। अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कर देना है, दैट इज 750 अपॉन 5, सो P01 इक्वल टू 5 to 5 120 150। सो अब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो प्राइस इंडेक्स है वो कितना है, 150 है प्राइस इंडेक्स। सो विद दी बाय दी 150 दैट मीन्स देयर इज नेट इंक्रीज इन प्राइसेस 50%, नेट increase in price is 50%, 50% इंक्रीज हो रही है प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया कि जब 50% प्राइस इंक्रीज हो रही है, सो दैट देयर इज ऑल्सो द 50% इंक्रीज प्राइस हो रही है करेंट ईयर में एज कंपेयर टू द बेस ईयर। बेस ईयर की कंपैरेटिवली प्राइस क्या हो रही है, 50% इंक्रीज करें। सो फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड दी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ द अनवेटेड. Okay, so what we have discussed in today's class, we have discussed the first of all we will go with the help of the unweighted index number, in which we have discussed the two method, that is simple aggregative method and the simple average of the price relative method. Okay, so in the next class we will go through the weighted index number.